Assalamu alaikum everyone. This is Zainab from DICE Analytics. I would like to welcome you all on behalf of DICE for today's webinar on career in cybersecurity and ethical hacking. It's my pleasure to announce that today's webinar will be conducted by our lead trainer, Mr. Jahanzeb Bawan. Mr. Jahanzeb is a senior cybersecurity engineer with proven expertise in designing and deploying secure infrastructures on cloud and on-premises, implementing security measures and auditing the effectiveness of security controls. He has a respectable record of recommending security improvements, evaluating and identifying vulnerabilities, and improving overall system efficiencies for the diverse nature of clients. He's adept at leading information security management programs and staying ahead of current risks. In today's session, Mr. Jahanzeb will be guiding you on what is actually cyber or information security, its different domains. He'll be guiding you on different certifications in cybersecurity, different career paths, and also about the local and international job market. So kindly note down your queries during this session because we will be having a Q&A session at the end. Thank you so much. Over to Mr. Jahanzeb. Thank you, Zainab, for the brief introduction. I hope everyone is fine and enjoying a good day. I don't want this session to be just from my side, delivering on my side. Rather, I want it to be much more interactive from everyone within this call. So only the required agenda of this call can be achieved. That what are we going to achieve from this call? Rather, only a one unidirectional session. If we make it more interactive by the questions, and I think that would be a good approach from everyone, right? So let me share my screen and start with something. So I'm going to share my screen, and I guess the screen is visible to everyone, right? Yes, it's visible. Okay, so we are going to discuss the careers in cybersecurity, not only the careers in cybersecurity, what is the job market in cybersecurity? Is this cybersecurity for everyone or only for a certain group of people related to the computer sciences, or any other people can join the cybersecurity domain? So we're going to discuss everything within this domain. Before going forward, I want to have a very brief introduction. I'm currently working in Careem as a senior cybersecurity operations engineer. And luckily, my degree is not in the computer sciences field. Rather, I have a bachelor's in the electrical engineering. So that was a switch for me. I will relate my story here as well, that how I got into the cybersecurity field from the electrical engineering, because a lot of people are asking me the same question, that they are not from the computer sciences background. They have some other background like the finances, like the electrical engineering, and now they want to get into the field of cybersecurity. So I will have a brief discussion on this as well. Okay, so from my education background, electrical engineer from the National University of Sciences and Technology, and then I am a certified AC Council instructor from the AC Council USA, right? And then I completed a couple of certifications related to the different domains of the cybersecurity. I will discuss what are the different domains of cybersecurity, but just to give you a brief introduction, I have certifications in as a certified ethical hacker. I'm also a certified SOC analyst. I did a couple of research and some certification in the network side as well. So I'm a certified network defender as well. So after a lot of on-premises certification and generic certifications, I moved towards the cloud, because cloud is not going anywhere, and everyone should be much more aware of the cloud side as well, because the world dynamics are changing. And so that's why the Microsoft certified fundamentals, and also, you know, they're actually a basic certification for every cloud, and then there is a specialty certification. So for the specialty, I completed my Azure certified in security engineer certificate. I'm also AWS solution architect certified engineer. And moving, I have the experience in multiple domains, because security, from the name cybersecurity, gives you a feeling that this is just a one field. But when someone dives into the cybersecurity, it's like a sea.
And then one realized that there are a lot of fields within the cybersecurity field. I will just name some of them here in which I have some experience, like the vulnerability assessment and penetration testing. Most of the people relate this penetration testing to the hacking or the ethical hacking part, where the hackers or the people find vulnerabilities and loopholes within the applications, right? The other one is about the web application testing. In every industry, they are the developers who develop things, right? And the other people who test whether these are secure or not. So those comes under the application security part. I have some experience in the web application testing as well. And then this security incident and even monitoring systems, SIM operations and threat hunting. So this is a very interesting field, SOC operations, you can relate to it, right? Because whenever the security is established, that's a one-time operation, but keeping it operational for a longer period of time with an effective measures, that comes under the umbrella of the SOC. The endpoint security, very familiar to everyone because everyone has anti-malware solutions running on their systems to prevent them from the harmful files or the harmful malicious malwares. And then comes the network security. Obviously, the things are running on the network side. The data that is flowing to your system is not coming from the directly satellite. It is flowing from the optical fiber from the different country, from the different parts of the globe, and then reaches the Karachi. And from Karachi to Lahore, we have the different networks that is laid out there. So it also needs a security. The security audit of cloud architectures. Obviously, the applications that are developed on currently are not deployed on premises, rather they are deployed on the cloud architectures where very secure architectures are designed, approved, and then built onto the cloud solutions. The other one is the security and compliance audits. So once something is built, it doesn't go into the production directly. It passes some security orders, whether they are meeting a certain criteria of a baseline security or not, and then it is moved into the production. The information security management system, that is a part of the security governance and compliance and frameworks where where the companies or the products have to meet a certain standard of the security, baseline security. And that's why the information security management system is there that certifies that a company XYZ meets those criteria of a certain level of security, because they have the people, process, and the technology, and everything is linked together. And now they have an information security management system running in their company, and now that makes a credible company that can do business outside of their home country. The people or the companies have consider them as a credible business partners. So that was a brief summary of my experience. So before directly jumping on to how can we actually relate and go into the cyber security, before going into that part, I think we should know what is the cybersecurity, because I believe the audience might be from the different domains as well. Not everyone might be coming from the computer science background. So a basic cybersecurity means that is the application of technologies, processes, and controls to protect systems, networks, programs, devices, and data from the cyber attacks. So in a layman language, we can say that a cybersecurity is the protection of the equipment or the things that we are running from the external threat actors, right? And the diagram below depicts that what could be the applications, what we secure in the cybersecurity domain, and from where, on what domains or what nodes we secure those things. So let's discuss one by one. The number one is the application. You must be using the Android phones or the iPhones, and you must have a couple of applications running on your devices. Like daily applications, Facebook, Twitter, Instagram. So these are the all applications, and we cannot say that they just landed directly on your systems. Rather they are running a foolproof security at their backend, because a lot of security engineers are working to make it secure and land on your systems. And the other one, or the main core of the cybersecurity, is to protect the information on every inch where it travels.
if information is residing on my laptop or my mobile, it should be secure enough so that an unauthorized person shouldn't have access to it. And also if it is traveling from a network and someone tries to sniff it, that shouldn't be possible for him. So information must be protected at every layer. The other one is about the networks. The companies are running networks, the cloud providers are running networks. When an application is built, it is deployed on some the network side. It have their internal networking as well. So to provide a very smooth line experience to the end user. So the network that we design, the network that we build must be secure enough to provide a foolproof security. Rather, it shouldn't be open like in our homes where there is no security parameters involved. Only one VLAN or the one main network is there where everyone is joined. Operational security. So that is the very interesting security that I was talking earlier. You can say the security operations center are running this operation security because the application is built once, but to keep it secure operational is a challenge for everyone because a lot of vulnerabilities are found every day on a lot of frameworks and a lot of devices. So to make them secure from the external threat vectors by applying some different controls, the operation part comes there. The encryption is for the handling of information and securing them in a secure way. Access control. So access control could be on the physical parameters as well on the application as well. Have you ever encountered a problem where you logged into your Facebook account and just landed into your brother's or your sister's account? Has that ever happened? No, that couldn't be happen because the access control behind the application are working and you only have access to your account instead of the other accounts. Because the basic fundamental principle of the security will breach if we say that there is no access control. The other one is the end user education. This is a very big portion of the in the domain of information security or the cyber security, because there is a quote from the Kevin Mitnick that you can patch the technical vulnerabilities, but you cannot patch the human stupidity. So this is very important because humans are the weakest link in the chain, and within the companies there are awareness seminars, there are security trainings, there are daily advisories, so to make sure that the things that are running in the company are secure, and the people, every person, even from the manager of finance to the HR people and to the security operations that are running in the system, and even to the guard, they must be aware of the fact that how they're gonna protect their information. The disaster recovery. The recent example that we're facing right now is the flooding situation within Pakistan. What if there's a data center in Swat? Would it be a feasible solution that if that system got destroyed and we don't have any backup solution? No, that won't happen in an organizations, because they always have a disaster recovery plan. If something goes wrong, they must have a redundant solution or redundant plan for it. So what could be the redundancies? It could be another office, it could be another site, or the world has seen a new disaster recovery plan, like what we see. What we see from the world during the COVID period, that the people have gone hybrid, the sessions were gone on Zoom, and now there is a hybrid approach overall. Okay, coming to the next part. Fawad, are you here? For someone from the DICE? Yes. I think there are some people who are saying that I should move towards the Urdu. It's totally up to you. Okay, so that's fine. Okay, so the scope of cybersecurity हम देखते हैं कि national level के ऊपर भी क्या है और international level के ऊपर भी क्या है, because everything is related to the scope. No one wants to come into the cyber security अगर उन्हें ये feel हो रहा है कि there is no scope, because हमारे country के ये mindset ये है कि सिर्फ उसी फील्ड के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको स्कोप नजर आ रहा होता है. लाइक आई रिमेम्बर जब हम 2016 में कभी एडमिशन लेने का सोचते थे तो हम सबसे पहले ये देखते थे कि स्कोप सबसे ज्यादा किसके अंदर है. बड़ी पेट फील्ड थी तब
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, सिविल इंजीनियरिंग। इससे बाहर हमें नहीं पता होता था कि क्या है, या द ओनली अदर फील्ड वाज द मेडिकल, राइट। अब अगर देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी ऑल तो थोड़ी सी हिडन फील्ड है पाकिस्तान में, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। अभी भी अगर किसी के पेरेंट्स को कहें कि हमने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो वो यही कंसिडर करेंगे, यार पता नहीं कौन से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा है। तो माइंड सेट एक चेंज करना हमारे सोसाइटी के अंदर बड़ा ज़रूरी है। अगर सॉफ्ट स्कोप को देखा जाए तो स्कोप पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त है। उसकी उसकी रीजन ये है कि हर कोई जो है, हर कोई वो एक पेट फील्ड या क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करता है। अब ट्रेंड चेंज होकर अगर कंप्यूटर साइंसेस की तरफ आ गया, तो हर कोई कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, आप देख रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स में भी बात कर रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, या वो यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ, गेम डेवलपमेंट, इस तरह की फील्ड्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो है वो मेरे ख्याल से 100 में से जस्ट 1 या 2% लोगों को पता होता है। जिन उसकी रीजन ये है कि उनको कभी ना कभी उन्होंने ये सुन लिया होता है, क्योंकि देयर इज सम नेम हैकर या हैकिंग। असल में हमारे पाकिस्तान में यहीं से साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट होती है, जब वो एक वर्ड हैकिंग सीख लेते हैं, हैकर का उनको आइडिया हो जाता है। तो जिनको तो थोड़ा सा होता है कि दे नीड टू एक्सप्लोर समथिंग, वो फिर क्या करते हैं कि हैकिंग के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। इनिशियली स्टार्ट इसी तरह से होता है कि कोई हैकिंग कर ली, किसी ने अपने फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट हैक करने के लिए क्या सीख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर बड़ी मजे की चीज होती है कि अगर किसी ने ये देख लिया ना कि उसने फेसबुक अपने फ्रेंड का अकाउंट हैक करना है, तो वो उस हैकिंग के अंदर अंदर ही ना कोई 10 से 15 चीजें सीख जाएगा। मसलन वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को सीख लेगा, वो फिशिंग सीख लेगा, वो एक्सप्लॉइट को स्टडी करना सीख लेगा। तो इसका ये फायदा होता है कि हमारे जो इस तरह से सेल्फ लर्निंग है, वो एक बड़ी अच्छी देखने में है इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हमारे भी बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी भी रिसेंटली जीकी ने स्टार्ट करवाया, और रिफा यूनिवर्सिटी में। इससे पहले तो कंप्यूटर साइंसेस की डोमेन थी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो अराउंड 3.5 मिलियन जो अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब की जॉब्स थी, और इसका जो टोटल अगर हम वर्थ देखें एट 2021, दैट वाज रेंजिंग अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि जो पाकिस्तान का टोटल बजट होता है वो अराउंड कोई 35 बिलियन डॉलर्स होता है। तो इस सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का पूरी दुनिया के अंदर अगर वर्थ है, तो दैट इज अबाउट 4 to 5 टाइम्स ऑफ द वर्थ इन बजट ऑफ द पाकिस्तान, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन अब काफी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सऊदीया ने अपना टोटली जो अपनी इकोनॉमी है उसको चेंज करके ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से वो टेक बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर ले गए। नाउ दे आर बिल्डिंग अ न्यू सिटी 120 किलोमीटर लॉन्ग एंड अ न्यू सिटी, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग ऑन देयर ऑन सॉइल, जहां पर वो, जिसकी वजह से मीना रीजन के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो 150 बिलियन डॉलर्स से लेके वो 317 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। एंड ये जस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे ज्यादा भी जा सकती है। देयर इज अनदर एक्सपेक्टेशन कि ये अराउंड 500 बिलियन डॉलर्स भी क्रॉस कर सकती है। सो दैट इज टोटली अप टू हाउ द इकोनॉमी माइट बी चेंजिंग। जिस तरह कोविड के अंदर बड़ी अच्छी एग्जांपल हम लेते हैं कि हर बिजनेस बंद हो गया था, लेकिन ओनली द कंप्यूटर साइंसेस डोमेन वाज फ्लरिशिंग। उसकी रीजन ये थी कि ये एक रिमोट है, हर कोई घर बैठे इसको लर्न कर सकता है और इसके अंदर फील्ड के अंदर आ सकता है। रिसेंट हाईलाइट में भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डाटा सेंटर, आप देखते होंगे पहले यूरोप के अंदर था, यूएस रीजन के अंदर था, सिंगापुर के अंदर था, कोई भी मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने कोई डाटा सेंटर नहीं था। लेकिन अब मिडल ईस्ट की ग्रोथ को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने कतर के अंदर अपना एक रिसेंट डाटा सेंटर को 3 to 4 डेज आई थिंक 29 या 31 ऑफ अगस्त को उन्होंने अपना माइक्रोसॉफ्ट ने डाटा सेंटर लॉन्च किया। एंड दे आर प्रिडिक्टिंग दैट अराउंड 25,000 और इवन अप टू 50,000 जॉब्स माइक्रोसॉफ्ट जस्ट कतर के अंदर अरेंज कर सकता है। सो जस्ट लुक एट द थिंग कि माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा सेंटर लॉन्च कर रहा है कतर के अंदर, और वो 50,000 जॉब्स कतर के अंदर लॉन्च करेगा। पैरेलल के अंदर यूएई के अंदर क्या हो रहा है, यूएई के अंदर अमेज़न वेब सर्विसेज ने 3 to 4 डेज अगो अपना डाटा सेंटर लॉन्च कर दिया। वो रीजन क्या है कि ये रीजन जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है और कोई रीजन दुनिया के अंदर नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, इवन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो देर इन डिफिकल्टी। लेकिन क्योंकि ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं, इंडिया अब टेक की तरफ जा रही है, तो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज ये मनी जनरेट करके अपने जो टेक है उसको इम्प्रूव करेंगे। सो अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना है, तो आई थिंक अगर आप डेली बेसिस पे भी देखें तो देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन दुबई,
कतर, बहरीन, सऊदीया, इतनी ज्यादा जॉब्स हैं कि शायद अगर आप ढूंढने बैठे हैं, अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको HR वाले तंग करने लग जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर। दुबई से आपको कॉल्स आ रही होंगी कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, आप इधर आ जाएं। सऊदीया से कॉल्स आ रही होंगी। आई वुड से कि ये बड़ी एक अच्छा टाइम फ्रेम है अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जंप कर सकते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन अगेन लाइज देयर कि हम साइबर सिक्योरिटी में आए कैसे। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज फ्रेशली ग्रेजुएट, या जो डिफरेंट डोमेन से हैं, या जो आना चाह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आए कैसे। काफी ज्यादा अप्रोचेज हैं साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए, लेकिन एक जो मैंने अप्रोच फॉलो किया, दैट इज अ जस्ट 5 स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर हम वन बाय वन अगर चीजों को फॉलो करें। एक्चुअली देयर इज नो शॉर्टकट कि आप डायरेक्टली कहें कि मैं साइबर सिक्योरिटी में आना है और मुझे कोई सिफारिश करवा के किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करवा दे साइबर सिक्योरिटी में और उसके बाद मैं डोमेन के अंदर सस्टेन कर जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब्दुल बासित, वी विल कम टू द क्वेश्चंस लेटर, सेव योर क्वेश्चन। आई थिंक हमारा जो ज्यादातर पार्ट होगा, मैं ये कह रहा था फवाद से भी, कि वो हम रखेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चनिंग आंसर के ऊपर। बिकॉज एक लॉयर मेरे पास आया, सेड कि यार मेरा साइबर सिक्योरिटी में मैं आना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ। वैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर साइबर लॉ ड्राफ्ट हुआ जस्ट 3 to 4 years ago। तो साइबर, आपको अगर कोई साइबर लॉयर लेने चले जाते हैं, कोई साइबर से रिलेटेड लॉ नहीं मिलता। साइबर हरासमेंट के इतने ज्यादा केसेस आते हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आप या ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर देखें तो बड़े ही मिनिमल नंबर ऑफ लॉयर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के केसेस को डील करते हैं। तो वो भी एक डोमेन है। अब BBA वाले लोग किस तरह से आ सकते हैं, लेट्स डिस्कस कि किस तरह से किया जा सकता है। ओके, जो 5 स्टेप्स हैं वो इस तरह से है कि गेट टू नो द साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड व्हाट जॉब्स आर ऑन ऑफर। ये हमेशा से टारगेट होता है कि अगर किसी आपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप देखते हैं कि مثلا कॉमन एग्जांपल ले लें कि मैंने अगर ट्रैवलिंग करनी है टुवर्ड्स द नारायण का खान या कुमराट वैली में, तो मैं डायरेक्टली नहीं चला जाऊंगा कि वहाँ पे क्या है। मैं पहले चेक करूंगा वहाँ पे कोई कैंपिंग है, सामान है कैंपिंग का, होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं, ये क्या उधर का, व्हाट इज द सिचुएशन ओवर देयर। उसके बाद ही मैं उस चीज के अंदर जंप करूंगा। और किस किस तरह की चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर रिलेट करें तो जिस तरह मैंने आपको भी फील्ड बताई है कि इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं कि आप किसी के अंदर भी चले जाएं, लेकिन उसके अंदर चीज क्या है कि आपने सस्टेन करना है। सस्टेन जितना ज्यादा आप स्ट्रांगली सस्टेन करेंगे, उतनी ज्यादा आपका सक्सेस फैक्टर इंप्रूव करेगा। लेकिन पता होना चाहिए जॉब का, तो फिर क्या करें, एजुकेट करें अपने आप को। ये नहीं कि मैं जस्ट मैंने जाना है तो मैं क्या करूं। इवन स्टार्टिंग के अंदर तो काफी ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। इवन वन हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ इवन मंथ्स साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। बिकॉज इसमें आने के लिए एक तो सुकून नहीं है। आप अगर आ भी गए साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो देखें कि डेली 1 to 2 आवर्स आपको अपनी स्टडी के लिए रखना पड़ता है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर फील्ड्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, गेट सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड। एजुकेशन और सर्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखते हैं। एजुकेशन तो होगी आपकी 16 ईयर एजुकेशन। अब सर्टिफाइड क्वालिफाई साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि मेरे पास रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। आई मस्ट बी क्वालिफाइड। मेरा कोई इंटर्नशिप हो सर्टिफिकेशन के साथ, मैंने ऑनलाइन कोई स्किल सेट प्रिपेयर किया हो, मैंने ट्रेनिंग्स ली हो एंड लाइक दैट। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है क्वालिफाइड और प्रैक्टिकल, ये इनको मैं सेपरेट नहीं रखता, इनको मैं मर्जी कर देता हूँ कि जब आप सर्टिफाइड क्वालिफाई हो रहे थे ना तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के प्रैक्टिकली आप कितना अचीव कर रहे हैं। हाई डोमेन के अंदर आप देखें कि 2 चीजें होती हैं। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी एक थ्योरी आपको करवाते हैं और साथ ही लैब करवाते हैं। ऑलमोस्ट दैट इज द 50% थ्योरी एंड द 50% लैब प्रैक्टिकल। जब तक आप लैब या प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कवर करते, आपकी थ्योरी का आपको 0% फायदा होता है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इससे ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर आप 70% प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हैं तो ओनली 30% इज द थ्योरी, बिकॉज प्रैक्टिकल के अंदर ही ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एंड द फाइनली इज द डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटीज एंड पैशन। अब ये क्यों जरूरी है, जब आपने सारा कुछ कर लिया है तो एवरीवन शुड बी वाइंग फॉर जॉब। जॉब लेने के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से लोग आपको हंट करें। कोई भी घर बैठे नहीं आएगा कि यार अच्छा आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो तो आज हमारे पास काम करो। नथिंग वर्क्स लाइक दैट। बल्कि इससे ज्यादा अच्छी आपको एग्जांपल देता हूँ कि टिकटॉक एक निहायत ही फजूल ऐप सोशल मीडिया की, लेकिन लोग इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। कि इवन छोटे से छोटा टिकटॉकर भी जो है वो क्या चीज करता है, अपनी एबिलिटीज और टाइम इन्वेस्ट करता है और लोग उसको अप्रोच करते हैं एंड देन द थिंग्स मूव फ्रॉम देयर। कि इवन हर कोई आई थिंक इज स्पॉन्सर्ड एट दिस टाइम ऑन टिकटॉक। लेकिन साइबर सिक्योरिटी या प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। लोकल एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, rosie.pk है,
फिर आपका आ गया फेसबुक, ट्विटर या इंडीड, लिंक्डइन। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप कुछ करते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू वासित, लिंक्डइन, इंडीड, ये वो आप, लेट्स सपोज मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया ना, मैं उसको बजाय अपने तक रखने के मैं अपनी प्रोफाइल पे डाल दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज ऐड कर दी है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखाता हूँ कि मेरी प्रोफाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से इंप्रूव हुई। तो इसका फायदा क्या होगा, जब मेरी वो एक प्रोफाइल बनी होगी, ऑब्वियसली किसी रिक्रूटर को चाहिए क्या, मुझे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए विद दी स्पेसिफिकेशन, तो क्या होगा, वो सर्च करेगा और उसको मेरी प्रोफाइल आएगी एंड देन ही विल गेट इन कांटेक्ट विद मी के आर यू विलिंग टू जॉइन अवर कंपनी, आपका ये एक्सपीरियंस है, इस डोमेन के अंदर एक्सपीरियंस है, तो आपको बड़ी इजीली जॉब मिल जाएगी। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, लेकिन फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ये सिचुएशन है कि इवन डेली बेसिस के ऊपर यूएई से कॉल्स आ रही होती हैं, आपने ज्वाइन करना है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है। इवन बड़ा अच्छा टाइम है साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए, अगर आप विद प्रॉपर स्किल सेट इस चीज के अंदर लैंड करते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इससे मैं पहले बता रहा था कि डोमेन्स काफी ज्यादा हैं, कोई बंदा किसी डोमेन के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता। एक अप्रोच तो ये होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो मेरी पर्सनल थी, वो ये कि मैंने हर डोमेन को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया। अब जितनी आपको इधर डोमेन नजर आ रही हैं, ऑलमोस्ट हर डोमेन को मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया। एक दूसरी अप्रोच होती है स्पेशलाइज्ड। एक टाइम आता है कि आपको एक किसी ना किसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज होना ही पड़ता है, और वो कोई भी डोमेन होती है। आप साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे डोमेन्स देखें तो ये ट्री कर रही हैं। स्टार्ट करें हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से। अब कोई एप्लीकेशन बननी है, कोई भी चीज डेवलप होनी है, डेवलपर्स को चाहिए होते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट, राइट। उन्होंने वो सोल्यूशन डिजाइन करना होता है, एप्लीकेशन बनेगी किस तरह से, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से होगा, लेकिन वो अकेले काम नहीं कर रहे होंगे, ऑलवेज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स हैं वो उनके साथ होंगे, जो गाइड कर रहे होंगे सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स को कि आप जो सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, दे शुड फॉलो अ सर्टेन रिकमेंडेड प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नेटवर्क्स का आइडिया, तो उसको पता होगा कि एक पूरी एप्लीकेशन कभी भी एक सबनेट के अंदर या एक सबनेट के अंदर नहीं डिप्लॉय की जा सकती। क्लाउड के ऊपर क्या होता है, उसको मल्टीपल सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय किया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि चीज के अंदर जो लेयर डिफेंस है वो आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीज अगर कंप्रोमाइज हो भी जाती है, तो वो एक लेयर के ऊपर आके स्टॉप कर जाए, उससे आगे वो पेनिट्रेट ना कर सके। और किन किन लोगों को एक्सेस होनी चाहिए उस क्लाउड आर्किटेक्चर के ऊपर, उस एप्लीकेशन के लिए, वो सब सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के साथ मिलके उस चीज को बनाते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि उबर है। जब उबर कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम डिप्लॉय की, तो किस तरह से आ गई, वो इस तरह नहीं कि वेब डेवलपर्स, ओनली वेब डेवलपर्स बैठे और उन्होंने एप्लीकेशन बनाई, एपीआई रिलीज की एंड दैट्स इट, नहीं। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट ने पहले कंप्लीट उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया क्लाउड के ऊपर, देन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स ने उसको अप्रूव किया, जो रिकमेंडेशंस थी वो उसके अंदर एम्बेड की, एंड फाइनली सिक्योरिटी ऑडिट के बाद और सिक्योरिटी पेन टेस्ट के बाद वो चीज मार्केट में आ गई। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के बाद जो एक और चीज है वो दैट इज द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर आप ये समझ लें कि हम चीज की सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। समझ लें कि एक इवल माइंड से जो हैकर है ना, वो उस एप्लीकेशन को फुल चेक करता है कि इवन हम कहीं से भी इस एप्लीकेशन को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये वो सारी होती है रिस्क बेस्ड असेसमेंट। जो एप्लीकेशन के अंदर कोड लिख रहे हैं वो रिव्यू होता है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन इंजीनियर्स उस कोड को रिव्यू करते हैं, डायनामिकली एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि कहीं से एप्लीकेशन ब्रेक नहीं कर रही, कितना लोड बेयर कर रही है। इवन ये ना कि सिर्फ एक कंट्री का लोड है तो एप्लीकेशन जस्ट वेंट डाउन, इस तरह का कोई सीन नहीं होना चाहिए। तो वो सारी जो टेस्टिंग है वो रिस्क असेसमेंट के अंदर होती है। Another thing that comes is the security operations part, जिसके अंदर मैं भी खुद करेंटली काम कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अच्छा यहाँ पे कि सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स ने अपना काम करके चीज बना के दे दी, सिक्योरिटी असेसमेंट भी हो गई। अब सिक्योरिटी ऑपरेशंस का काम ये है कि उन्होंने उस चीज को हमेशा के लिए ऑपरेशनल रखना है। अब ऑपरेशन किस तरह से रखना है कि लेट्स सपोज उबर 2010 के अंदर आई, 2 साल के अंदर एप्लीकेशन बन गई, तो 2012 के अंदर वो बिल्कुल हर मार्केट पूरी वर्ल्ड वाइड के अंदर वो पब्लिक हो गई। लेकिन अब उसको मेंटेन करना 10 साल से वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम नहीं है, वो टीम कर रही है सिक्योरिटी ऑपरेशंस की टीम। इट मींस कि सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की जॉब्स कम होंगी और सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जॉब्स ज्यादा होंगी।
क्योंकि उस चीज को रन करने के लिए जहाँ पे 10 साल अभी रन कर रहे हैं और वो फुली चलती रहेगी वो, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा से ही ज्यादा रहेगी। अब ऑपरेशंस इंजीनियरिंग के अंदर क्या चीज आती है, बड़ी कॉमन सी हम स्टार्ट करते हैं कि कोई एप्लीकेशन के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा, कहीं बाहर से कोई बंदा अगर उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो हमने उसको डिटेक्ट करना है ऑन द फर्स्ट डिफेंस ऑफ, देन हमने उसको रोकना है कंट्रोल्स लगा के वो दोबारा अटैक ना कर सके। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई चीज कंप्रोमाइज हो गई है तो उसको लिमिट किस तरह से करना है, एंड देन चीज को पैच करके रनिंग कंडीशन के अंदर लेकर आना है। सेकेंडली जो हमारे एंड सर्वर्स होते हैं, यू नो कि एवरी चीज हर चीज हमारी रन हो रही है सर्वर्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर कोई ना कोई एंटी मेलवेयर सॉल्यूशंस होंगे। इवन हम सब लोगों के सिस्टम के ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, या किसी ने कोई अगर एंटी मेलवेयर सॉल्यूशन लिया हुआ है, ईसेट लिया है, मैकाफे लिया है, या कैस्पर्स की लिया है, वो क्या है, एंटी मेलवेयर सॉल्यूशंस है जो हम इसी के अंदर फॉलो करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर, ताकि जो एप्लीकेशन है वो किसी मेलवेयर से इन्फेक्ट ना हो जाए। एंड अनदर वेरी थोड़ा सा ये ड्राई पार्ट होता है गवर्नेंस का, फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स का। अब लेट्स सपोज मैं फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स की आपको एग्जांपल इस तरह से कर देता हूँ कि पाकिस्तान की किसी कंपनी के साथ किसी यूएस कंपनी ने काम करना है, तो वो क्या क्रेडिबिलिटी होगी हमारी पाकिस्तान की कंपनी की। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की, क्या क्रेडिबिलिटी का थ्रेशोल्ड होगा कि यूएस की कंपनी के कि ठीक है हम आपके साथ बिजनेस करते हैं लेकिन आप हमें बताएं कि यू आर मीटिंग अ सर्टेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अगर सिस्टम लिमिटेड ये तो नहीं ना कह सकती कि नहीं भाई हम बड़े सिक्योर हैं, हमने ये किया हुआ है। वो कंपनी कहेगी नहीं, मुझे आप कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिखाएं जो सर्टिफाई करे कि आप सिक्योर हैं और सर्टेन सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड इज द आईएसओ 27001, ये वाली डोमेन आईएसओ आईएसी कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा डिप्लॉय होता है इसके अंदर, एंड देन वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना 14 पैरामीटर्स या 14 कंट्रोल्स के ऊपर चेक करते हैं कि वो सिक्योरिटी की बेस लाइन थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं या ये नहीं करते। सिक्योरिटी उस कंपनी के लिए कोई जरूरी है भी, या जस्ट उन्होंने नाम के लिए वो बात कर रहे थे कि बस हम सिक्योरिटी रन कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैंने ऑडिट करवाया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूके की, अगर यूके से, जो मुझे सर्टिफाई करेगी कि आप ISO 27001 सर्टिफाई हैं। लेट्स सपोज मैं मेरी कंपनी सिस्टम लिमिटेड सर्टिफाई होगी कि ISO 27001 सर्टिफाई। इट मींस कि मेरी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो गई है कि कौन कौन मेरे साथ बिजनेस कर सकता है, प्लस ये भी पता चलेगा कि मैं एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए इजी हो मेरे साथ बिजनेस करना। तो फाइनली द गवर्नेंस पार्ट, गवर्नेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ना इस तरह रन नहीं होती on just on the verbal basis. There are always written documents, written policies, written procedures. उन प्रोसीजर्स और पॉलिसीज को फॉलो कौन कितने % कर रहा है वो गवर्नेंस का काम है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गवर्नेंस से मुराद क्या है। हमने एक अगर पॉलिसी डिफाइन की हुई है कि हम 19 सिक्योरिटी इंजीनियर्स को उठाएंगे जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा और जिनकी कुछ सर्टिफिकेशंस होगी। अगर मैंने कोई एक बंदा भी उठा लिया जो उस क्राइटेरिया को नहीं मीट करता और गवर्नेंस ने आके कहा कि दिस इज नॉट द पर्सन दैट वी वांट, तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब्दुल बसीस, यस आप ब्रेक कर लें, हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ठीक है, नो वरीज। आप हमें ज्वाइन करेंगे तो उसी पार्ट के ऊपर होंगे ऑलमोस्ट। इनको थोड़ा सा समराइज अगर हम करें कि रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी कौन कौन से हैं, ये तो एक जेनेरिक डोमेन्स आ गई ना, लेकिन किसी नाम से हमने देखना है ना कि किस डोमेन रोल के अंदर जाना है। जहाँ तक एक बड़ा जेनेरिक सा है सिक्योरिटी इंजीनियर, मोस्टली यही रन हो रहा होता है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, या क्लाउड या सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये कुछ नेम्स हैं या रोल्स हैं जो मार्केट के अंदर काफ़ी इन है। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स ये एक डिफरेंट फील्ड है, या सिक्योरिटी की एक सब फील्ड कह लें, जिनका काम ये है कि जो क्लाउड एनवायरनमेंट्स हैं उनको सिक्योर करना। पेनिट्रेशन टेस्टर एंड एथिकल हैकर। आप अगर पिछले डोमेन के अंदर देखें, आपको यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग नजर आ रही है, रिस्क असेसमेंट के अंदर सोर्स कोड स्कैन, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, तो ये सारे के सारा जो काम है ना ये पेनिट्रेशन टेस्टर एंड एथिकल हैकर करते हैं।
तो फंडामेंटल आइडिया इनका ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है। सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आर मोर ऑफ अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट समझ लें, जो ऑर्गेनाइजेशन के को जज करेंगे, उनका करंट सिक्योरिटी पॉस्चर देखेंगे, आईटी पॉस्चर देखेंगे, और देन वो एक रोड मैप डिफाइन करेंगे कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को एक मैच्योर सिक्योरिटी हाइजीन की तरफ लेके चलें। साइबर क्राइम एनालिस्ट एंड इन्वेस्टिगेटर, ये थोड़ी सी डेविएट कर गई है। ओके, गुड क्वेश्चन। नेटवर्क इंजीनियर्स, आशिर जस्ट वेट, आपका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर ही हो जाएगा। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, फ्रीलांस कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, दे आर एक्चुअली, जो फ्रीलांस कंस्ट्रक्टर हैं, ये थोड़े से सीनियर पोजीशन के ऊपर जाकर आते हैं, जब आपको 6, 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो लोग उनको इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ फुल टाइम सिक्योरिटी इंजीनियर्स, वो कंसल्टेंट्स हायर कर लेते हैं जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट या किसी जगह पे कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो तो। सिक्योरिटी ऑडिटर्स काम करते हैं, they have a checklist sort of, समझ लें, या एक स्टैंडर्ड बेसलाइन क्राइटेरिया है। दे ऑडिट, जिस ISO 27001 के अगर ऑडिटर्स होंगे तो उनके पास अपना एक क्राइटेरिया होगा, जो उस क्राइटेरिया को मीट करेगा वो पास कर लेगा। ये सिक्योरिटी ऑडिटर्स का काम है कि उन्होंने इस चीज को वेरीफाई करना है। फाइनली द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये समझ लें कि पूरी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी को रन कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी डिफाइन कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड द सीजोस। बाकी जो लिखे हैं वो इनके अंडर फॉल करती हैं। यस, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई? जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा, कि मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है, अगर आपने एंट्री लेवल जॉब लेनी है साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको कितनी मतलब हद तक कोडिंग वगैरह आनी चाहिए और कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? अभी जो आपका क्वेश्चन है ना, इसको मैं थोड़ा सा इसी स्लाइड से रिलेट करता हूँ। आपने मुझे कहा कि कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए, कितनी कोडिंग आनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ एंट्री पे लेवल जॉब, एंट्री लेवल जॉब, एग्जैक्टली। एक तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो दैट इज एनफ, बिल्कुल काफी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। आपको पाइथन आती है, आपको सी शार्प आती है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको पीएचपी आती है, तो आपके पास सफिशिएंट स्किल सेट है कि आप एंट्री लेवल जॉब के ऊपर चले जाएं। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज सेपरेट नहीं है हमारी कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड से। समझ लें कि उसका एक छोटा भाई है या छोटा बेटा है कंप्यूटर साइंसेज का, कि जिसके अंदर उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना है। अब आपके जो क्वेश्चन का पार्ट है जहाँ पे कोडिंग वगैरह की चीजें इंक्लूडेड है, वो इन दो पोर्शंस को टच कर रही है, वेब एंड मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप बाकी जगहों को देखेंगे ना, तो बाकी जगहों पे इवन प्रोग्रामिंग भी इतनी हाई लेवल की रिक्वायर्ड नहीं है। स्टोरेज एंड डाटा के अंदर आपको उसकी वर्किंग का पता होना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस का, कोई प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है। आईटी मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है। हार्डवेयर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इवन कोई प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब नेटवर्क एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर के अंदर ना, आप देखा होगा कि अगर किसी का नेटवर्किंग से बैकग्राउंड है तो सिस्को के राउटर स्विचेस के ऊपर ना, वो दैट इज नॉट द प्रोग्रामिंग, वो उनका सिंटैक्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप उस चीज को कॉन्फ़िगर करना सीख लें। इवन प्रॉपर गाइडलाइंस अवेलेबल है, कमांड्स रन करना सीख लें जिस तरह बिल्कुल लिनक्स के ऊपर होती हैं, तो यू आर प्रो ऑन दोस थिंग्स। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? इसको मैं और एक्सप्लेन करूं? सर, एक और क्वेश्चन था ये कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और जो आईटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी है, इनमें थोड़ा बता देंगे, इनमें मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? ठीक है, आईटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, आपने देखा होगा, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके अगर सिस्टम का कोई इश्यू आया है, आपका सिस्टम डोमेन से ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, आपके विंडोज के इशू आ रहे हैं, आप ऑल्दो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन आपका यूजर ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा, तो वो, या आपके सिस्टम को कोई भी मसला आ गया, तो वो किसके अंदर फॉल करेगा? आईटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर। अब स्ट्रेटेजी क्या है, देखा होगा कि लैब के अंदर कोई भी सिस्टम के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बना हुआ, उसके पीछे क्या है कि सिक्योरिटी माइंडसेट रखा हुआ है कि यार हर किसी को हमने प्रॉपर रेडियस सर्वर या एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट करवाना है, और उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट उसको कर रही है आईटी टीम, ठीक है। और स्ट्रेटेजी कौन दे रहा है? स्ट्रेटेजी मिलके बनाई जा रही है बिटवीन द आईटी टीम एंड द प्योर सिक्योरिटी टीम।
सिक्योरिटी टीम ने डिफाइन कर दी यार हमें ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म लगाना है, आईटी टीम कहती है ठीक है यार हम इसके पीछे ना एक्टिव डायरेक्टरी लगा देते हैं, सिक्योरिटी कहती है हाँ ठीक है अच्छा सोल्यूशन है, हमें इससे मल्टीपल फीचर्स भी मिल रहे हैं, देन आईटी टीम उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। मतलब सर ये जो आईटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है इसमें आपकी मतलब स्पेसिफिकली किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग की या मतलब किस चीज़ की? अच्छा बेसिक्स के लिए ना अगर आप मेरे से पूछते हैं तो सिस्टम लेवल की आपको हर डोमेन में फॉलो करने के लिए सिस्टम लेवल की आपको बेसिक्स का आइडिया हो, इवन ये ना आपको पता कि मुझे तो ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिनको ये नहीं पता था कि लिनक्स के ऊपर डायरेक्टरी लिस्ट कैसे करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं हो, अगर सिचुएशन है तो आप लर्निंग मोड के अंदर जा सकते हैं। लर्निंग मोड के अंदर आप चलेंगे, सिस्टम की बेसिक्स का आपको पता चल गया, प्लस नेटवर्किंग की बेसिक्स का आइडिया हो गया, नेटवर्किंग किस तरह से नेटवर्क किस तरह काम करते हैं, और बिल्कुल बेसिक जो सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं उनका भी आइडिया हो। इवन ये सिचुएशन ना हो कि आपको विंडो करवाने के लिए भी किसी दूसरे बंदे के पास जाना पड़े, लिनक्स करनी है आपने अपने सिस्टम के ऊपर, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हमेशा हेल्प करेंगी जब आप साइबर सिक्योरिटी की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डोमेन की तरफ जाएंगे ना, तो ये बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। अच्छा कुछ क्वेश्चन क्लियर? यस सर। अच्छा एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, एंट्री लेवल एक चीज है इंडस्ट्री के लिए कि लेट्स सपोज दो एग्जांपल आपको देता हूँ, आप एक कंप्यूटर, दो लोग हैं कंप्यूटर साइंसेस के डोमेन से रिलेटेड, एक के पास सर्टिफिकेशंस हैं कोई दो तीन साइबर सिक्योरिटी की और एक के पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो ऑब्वियसली जिसके पास सिक्योरिटी की बेसिक लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं उसको हमेशा ही एज रहेगा। अब आप मैं चीज आपके ऊपर डालता हूँ, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने रखना है कोई हैकर रखना है, आपके पास दो लोग आते हैं, एक के पास सिक्योरिटी की एक भी सर्टिफिकेशन है और एक के पास कोई भी नहीं है, तो किसको प्रेफर करेंगे आप? ऑब्वियसली जिसके पास कोई एक आधी छोटी सी सर्टिफिकेशन भी होगी, हमेशा वो आपको एज देगी इंडस्ट्री में, इवन एंट्री लेवल जॉब के लिए भी। अब सर्टिफिकेशन एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए ना डिफरेंट है। इंटरमीडिएट के लिए तो इवन आप 2 से 3 माह भी ट्रेनिंग वगैरह करके ना सर्टिफाई हो सकते हैं। आई थिंक जाहिद का ये क्वेश्चन था, सनाउल्लाह हादी आई एम नॉट बिलोंग टू इट। सनाउल्लाह आपका बैकग्राउंड किससे है? Sir, I'm an engineering student, mining engineering student. So I love to learn about ethical hacking, but for my university, I haven't get IT department, so that's why. But I have still craze to learn ethical hacking. ठीक है, मैं आपको बड़ी एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे एक यूके से कॉल आई, वो बंदा था, उसका बैकग्राउंड था बीबीए फाइनेंस के अंदर। अब उसने आगे क्या किया, उसने बीबीए फाइनेंस को डिसकंटिन्यू किया, ओ सॉरी कंप्लीट किया, और बीबीए फाइनेंस की 2-3 साल जॉब करने के बाद उसने मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर इनरोल कर लिया। आप जिस तरह माइनिंग की फील्ड बता रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। वो एफर्ट क्या है, आपको मास्टर्स या तो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर करना पड़ेगा, जो कि सबसे आइडियल सिचुएशन बनती है, और जब एक दफा क्योंकि आपके पास मास्टर्स आ गया ना साइबर सिक्योरिटी का, तो बैचलर्स को इतना ज्यादा बॉदर एटलीस्ट उस लेवल के ऊपर नहीं करेंगे। आपके पास अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, मास्टर साइबर सिक्योरिटी का आ जाता है, और को 2-3-4 सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपका जो कवर था ना जो माइनिंग वाला, वो कवर हो जाता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, मैंने इस तरह से किया, मुझे भी शुरू में मैंने इलेक्ट्रिकल की जॉब की, लेकिन क्योंकि शुरू से यूनिवर्सिटी से ही मेरा साइबर सिक्योरिटी की तरफ इंटरेस्ट था, मैंने ग्रेजुएट होने के बाद प्रैक्टिस की है, कोई 1.5-2 साल अपनी जो चीज़ें हैं उनको मजीद एक्सप्लोर किया है, इन्हांस किया है, एंड फाइनली मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी है, एंड जस्ट विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 years मैंने 8 से 9 सर्टिफिकेशंस की हैं। और अब आई एम एट अ, यानी कि अब वो उतना ज़्यादा मसला नहीं होता कि किस डोमेन के अंदर जाना है, थोड़ा सा स्विच करते वक्त आपको इशू होगा, वो पाथ जो है रोड मैप आप डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैंने भी बता दिया है कि किस तरह कवर होगा। व्हाट इज डिफरेंस, क्लियर सनाउल्लाह? यानी जी सर, इसमें एक और भी है SOC एनालिस्ट। सर वो क्या होता है? वो साइबर सिक्योरिटी में होते हैं वो भी, SOC एनालिस्ट। हाँ, सॉक एनालिस्ट वही है ना, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं ना, दे आर द सॉक एनालिस्ट। बेसिक्स के साथ साथ उनकी भी सर्टिफिकेशन डिफरेंट है।
Okay, what is difference between ethical hacker, cyber security expert, pen tester? एथिकल हैकर जो है ना वो समझ एक बड़ी वास्ट डोमेन है। पेन टेस्टर एथिकल हैकर भी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी एथिकल हैकर हो सकता है। एथिकल हैकर समझ लें कि उसको सब कुछ आ सकता है जहां जहां पर वो काम करेगा। एक पेन टेस्टर है, ब्लू टीमिंग भी कर रहा है, रेड टीमिंग भी कर रहा है, वो एथिकल हैकर है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो भी एथिकल हैकर है। तो एथिकल हैकर कोई डोमेन नहीं है, रादर ये एक टर्मिनोलॉजी समझ लें जो उस चीज को बस डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। आप भी एथिकल हैकर हैं अगर चीजों को आप लर्न करना स्टार्ट कर दें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इंडस्ट्री के अंदर आए तो आप भी एथिकल हैकर कंसिडर होंगे। सर यू आर ट्राइंग टू से दैट सिस्टम एडमिन नेटवर्क टीम वोंट वर्क अंडर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। नहीं साकिब, मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि टीम्स ऑलवेज वर्क इन कोलैबोरेशन। आईटी टीम जो है वो सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर काम करती है और नेटवर्क टीम भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम के साथ काम करती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने नेटवर्क डिप्लॉय करना था, तो वहां पर एक आईटी टीम थी जो जिसने नेटवर्क डिप्लॉय करना था और मैं था सिक्योरिटी टीम की तरफ से। अब हुआ क्या कि नेटवर्क टीम ने अपना एक नेटवर्क डिजाइन लेके आए और उन्होंने कहा कि हम ये डिप्लॉय करने लगे हैं, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि आप इसके अंदर तो बेसिक सिक्योरिटी के फीचर्स ही लैक कर रहे हैं, आपने प्रॉपर वीलैंस नहीं डिफाइन की हुई, आपने इसके अंदर एपीएस सही जगह पे नहीं प्लेस किए हुए, आप अपना एज राउटर एक्सपोज कर रहे हैं, फायरवॉल इंस्टॉल नहीं है, तो उन्होंने वो चीजें जब उसके अंदर इम्बेड कर ली, देन फाइनली देखा इसके अंदर हमेशा कोलैबोरेशन से चल रहा है काम। उन्होंने जब फाइनल आर्किटेक्चर डिप्लॉय किया तो दैट वाज a secure architecture. What is SOC analyst explain? SOC is SOC means security operation center. थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाले क्या कर रहे होते हैं। एक चीज डेवलप हो गई है उसको ऑपरेशनल रखना, तो वो किस तरह से रखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा देता हूँ उबर की। उबर एप्लीकेशन बन गई है, अब उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करें मुझे बताएं। अगर आप आज ऊबर के ऊपर बैठ के अटैक शुरू कर देते तो उसको प्रिवेंट कौन करेगा? एप्लीकेशन बनाने वाले तो बना के चले गए, लेकिन प्रिवेंशन के लिए उसको रन करने के लिए कोई टीम तो होगी ना। अब आपने क्या किया है कि ऊबर की एप्लीकेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंजीनियर्स बैठे होंगे वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि आपकी आईपी से अटैक आ रहा है, आपको वो ब्लॉक कर देंगे, आपके पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस रीजन से अटैक कर रहा है, और इवन अगर आप किसी ऑथेंटिकेटेड यूजर से करें तो आपका यूजर भी वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो सॉक के अंदर ये चीजें आती हैं। एक और चीज आती है, आपने देखा होगा कि विंडोज यूज कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की अचानक से एक न्यूज आ जाती है कि जी सीरियस वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाइड इन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स, पैच योर सिस्टम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर आता है कि जो वल्नरेबिलिटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम अराइज होती हैं उनको पैच करना और सिस्टम को रनिंग कंडीशन के अंदर, सिक्योर रनिंग कंडीशन के अंदर रन करना, दैट इज द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे उनके डोमेन के अंदर आता है। व्हाट अबाउट डेवसेकऑप्स? अब्दुल्ला डेवसेकऑप्स आप ये ले लें, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि एक आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है। लेट सपोज आप कहते हैं कि आपने ना फेसबुक की कॉपी क्रिएट करनी है, तो आप उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप उसको कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और उस जहां पर भी आपने उसको होस्ट करना है उसका आर्किटेक्चर डिजाइन स्टार्ट करेंगे। डिजाइन हो गया। अच्छा, पहले होता था डेव ऑप्स, सेक को भी हम निकाल देते हैं, सेक हम बाद में इंक्लूड करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ डेव ऑप्स क्या चीज है। अब आपने चीज बना के ना उसको रन कर दिया, लो भाई लोग फेसबुक आपकी फेसबुक को यूज करना शुरू हो गए हैं, आपने उसको ऑपरेशन भी कर दिया कि ज्यादा लोड आता है तो आप ज्यादा सर्वर्स डिप्लॉय करते हैं, कोई यूजर क्रिएट करके देना है किसी को, आप यूजर भी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट कहीं पर भी आपने नहीं देखा। अब डेव ऑप्स खत्म हो के आहिस्ता आहिस्ता डेव सेक ऑप्स के ऊपर चला गया। अब सेक वाला पोर्शन क्या है? आप जब फर्स्ट डे से कोड लिख रहे थे तो वो डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं होगा, आप उसको सिक्योरिटी टूल्स के साथ चेक करेंगे कि कहीं पे कोड के अंदर आपने वल्नरेबिलिटी तो नहीं छोड़ दी, कहीं पे सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, या कोई भी वल्नरेबिलिटी। आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं, चीजें सारी पब्लिक तो नहीं है, प्राइवेट रखना था आपने S3 बकेट को, जिधर आपका सारा डाटा है आपने वो पब्लिक रख दिया हुआ। बड़ी बेवकूफी है, ये तो नहीं ऐसे होना चाहिए था। पहले डेवऑप्स ऐसे करते थे। सेक के अंदर आप सिक्योरिटी का एलिमेंट डाल देंगे कि आप अगर आप कोई चीज डिप्लॉय कर रहे हैं वो भी सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, एंड फाइनली सिक्योर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होगी। सर इसके साथ साथ एक्चुअली आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर
अगर मुझे डेवसेकऑप्स की तरफ जाना है तो कौन सी सर्टिफिकेशंस आप सजेस्ट करेंगे उसके लिए? Because there are ठीक है। two paths, one towards cloud, one towards IT, the information security. DevSecOps का आई थिंक पाथ बड़ा क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का भी मेरे ख्याल से अगली स्लाइड्स के अंदर मैंने लिंक भी दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने DevSecOps का पाथ किस तरह से डिफाइन किया। थोड़े से इसके अंदर एफर्ट ज्यादा अपनी होती है कि जो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है ना, जिस तरह अगर आप मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दूं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सर्टिफिकेशन कर ली, डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन कर ली, साइट रिलायबिलिटी की सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन आपका सेक वाला पोर्शन अभी भी बाकी है। सेक के लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी सर्टिफाइड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन करेंगे, और जब फाइनली आप तीनों चारों सर्टिफिकेशंस कर लेंगे, आपको पता होगा कि मैंने सिक्योरिटी के अंदर से कौन सी टूलिंग कैपेबिलिटीज को, कौन सी टेक्निक या अप्रोच को यूज करते हुए इसको कंप्लीट DevSecOps बनाना है। मसलन अभी आप DevOps के अंदर क्या कर रहे होंगे, आप कोड लिख रहे हैं, पाइपलाइन रन हो रही है और जाके डिप्लॉय हो जाती है। जब आप DevSecOps कर लेंगे तो फिर आपको पता होगा कि अच्छा यार, मैंने तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के डिफेंडर भी डिप्लॉय करना था, मैंने इसको सोनार क्यूब से कोड क्वालिटी टेस्ट भी करनी थी, मैंने चेक पॉइंट के थ्रू कोड रिव्यू भी करवाना था, वो भी मिस हो गया। तो जब इन चीजों को आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो आपका SecOps वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। Got it. व्हाट इज सिम सोल्यूशन? फातिमा, सिम सोल्यूशन हमारे पास ना सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर लगे होते हैं। सेम सोल्यूशन आप इस तरह से एग्जांपल ले लें कि ये आईज होती हैं किसी भी कंपनी की कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। मैं कॉमन एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई मेलवेयर आ जाए तो किस तरह से डिटेक्ट करेंगे आप? आंसर कर सकती हैं आप? मैलवेयर्स के लिए तो आई थिंक जो एंटीवायरसेस होते हैं या विंडोज डिफेंडर, वो आई थिंक वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने तो अपने इंडिविजुअल सिस्टम का बता दिया मुझे, मेरे पास 10,000 सिस्टम्स लगे हुए हैं। 10,000 सिस्टम के ऊपर किसी भी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो मुझे बताए कि सिस्टम के ऊपर मेलवेयर आया था या नहीं आया था। मेरे पास कोई सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन होना चाहिए ना। अगर मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूं तो मुझे 10,000 सिस्टम की विजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिम के अंदर ना दो बड़े मेजर पोर्शन होते हैं। एक होता है EDRs जिनको हम कहते हैं एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है सिम। सिम मींस सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मॉनिटरिंग। क्या चीज इसके अंदर कवर होती है? आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जितने लोग लॉगिन कर रहे हैं, जितनों ने साइन अप किया, इवन एक्सटर्नल ट्रैफिक जो हिट हो रही होती है ना। अगर आप वेबसाइट भी ओपन करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने वेबसाइट ओपन की उबर की या बैंक ऑफ पंजाब की, तो किस तरह पता चलेगा कि किस आईपी ने कितने बजे आके उस वेबसाइट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया? दैट इज ओनली पॉसिबल अगर सिम सोल्यूशन लगा हुआ। सिम सोल्यूशन क्या करेगा, वो मॉनिटर कर रहा होगा एप्लीकेशन को कि फातिमा ने इस आईपी से 6 बजे लॉगिन किया है और वो बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर अटैक कर रही है। जब तक सिम सोल्यूशन नहीं होगा मुझे नहीं पता होगा। सिम ही मुझे ये बताएगा कि इस आईपी से इतने बजे इन्होंने मेरे ऊपर एक अटैक लॉन्च कर दिया, और फिर मैं उस अटैक को देखते हुए अपने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करूंगा कि ब्लॉक आई कर दूंगा आपको, या जो भी आप पेलोड सेंड कर रही थी मैं उनको फायरवॉल से ब्लॉक कर दूंगा। तो ये सिम सॉल्यूशंस का काम होता है। एंड हाउ कैन वी स्टार्ट दिस साइबर सिक्योरिटी जर्नी हु डजंट येट नो अबाउट इट? अब्दुल वासिद, हम यही काम कर रहे हैं आज यार। जस्ट वेट, ये एंड तक होपफुली क्लियर हो जाएगा। I am final year student doing BSS, but I wasn't able to find an internship. Please guide, thanks. एहतिशाम, इसके बाद आप कनेक्ट कर लीजिएगा बेशक हम में से किसी से, तो ये हेल्प कर देंगे कि रिक्वायर्ड क्या है साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग के लिए। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ से ब्रेक लेके हम आगे चलते हैं, क्योंकि काफी अभी रहता है कि हमने क्या कवर करना है। किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो बाद में भी कर सकते हैं। अब रोड मैप डिफाइन करना था कि आप डिफरेंट डोमेन से होंगे। जाहिर बात है साइबर सिक्योरिटी के अंदर से सारे के सारे उठ के नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर नहीं चले जाएंगे। कुछ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर चले जाएंगे, कुछ स्टोरेज एंड डाटा सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर चले जाएंगे। जिस तरह से वो भी एक थे हमारे साथ, वो बता रहे थे कि वो डेवऑप्स के अंदर है, तो वो किस तरह से करें। वो नेटवर्क एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज डेवसेकऑप्स वाले डोमेन में जाएंगे। कोई डेवलपर है, वेब डेवलपर, तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसके लिए बड़ी अच्छी फील्ड है। और ये कुछ बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशंस हमने लिखी हुई हैं, ऑल्दो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द CompTIA,
लेकिन हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको बाकी जो बाकी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइडर हैं, लाइक ईलन सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा है, कॉम्टिया की चल रही है सर्टिफिकेशन, ईसी काउंसिल की इवन काफ़ी अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं जो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर सर्टिफिकेशंस आप यहाँ से देख लें और उसको आप परस्यू कर सकते हैं, या ऑनलाइन इतनी अच्छी अब तो हेल्प पड़ी हुई है, ऑनलाइन ले लें आप हेल्प। अब एक हम बेसिक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का रोल देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जेनेरिक रोल है कि क्या करता है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। उसने देखना है कि नेटवर्क लेवल के ऊपर कोई अटैक तो नहीं आ रहा, कोई बैठ के ब्रूट फोर्स कर रहा है चीज़ों को या वीलैंस को बाईपास करने की ट्राई कर रहा है, तो उसने मेक श्योर करना है कि जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है दैट इज फुल प्रूफ। यूजर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जाहिर बात है कंपनी के अंदर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इंजीनियर्स नहीं होंगे, ना ही हर कोई सिक्योरिटी माइंडसेट से होगा, तो हर किसी को सिक्योरिटी की बेसिक्स का बताना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है। मेलवेयर प्रोटेक्शन, क्वाइट इजी एंड सिंपलर टू अंडरस्टैंड। रिमूवेबल मीडिया कंट्रोल्स, नॉर्मली क्या होता है कि यूएसबी या इस तरह के जो मीडिया कंट्रोल्स है ना, ये डिसेबल होते हैं, बिकॉज 75% जो मेलवेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो थ्रू यूएसबीज या मोबाइल लगाने से आते हैं, तो अगर उनके ऊपर भी कंट्रोल्स लगा दें दैट कैन बी अचीव्ड। मैनेजिंग यूजर प्रिविलेजेस, हमेशा से आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एडमिन्स होते हैं जिनको एलिवेटेड प्रिविलेजेस होते हैं जो हर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ हम जैसे होते हैं जिनके पास सिर्फ अपनी जॉब से रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म करने की प्रिविलेजेस हैं। मैंने कोई लॉग इन करना है, अपनी अटेंडेंस वगैरह देखनी है, तो मेरे पास सिर्फ यूजर के रीड के राइट्स होंगे ना, मैंने उसके ऊपर जाके अटेंडेंस एडिट तो नहीं करनी। जिसको एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस ईआरपी पोर्टल का, तो वो एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ काम करेगा। एंड फाइनली द मॉनिटरिंग पार्ट, हर चीज जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रन हो रही हैं और एप्लीकेशंस चल रही हैं, नेटवर्क चल रहा है, एंड पॉइंट, उन सबको मॉनिटर करना और टाइमली एक्शन लेना उसका काम है सिक्योरिटी इंजीनियर का। स्टेप 2 इज द गेट एजुकेटेड। ऑलरेडी डिस्कस हो गया हुआ है कि आपकी अगर डिग्री, देखिए मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है कि आप 16 ईयर एजुकेशन हो। नॉट अ वेरी हार्ड क्राइटेरिया, मैं कहूँगा जिसकी 16 साल की एजुकेशन नहीं है वो बस सो जाए, कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए जिंदगी खत्म है, ऐसे नहीं है। 16 साल की एजुकेशन आपको बड़ा एक गुड टू हैव एनवायरनमेंट है, अगर आपके पास है तो आपकी काफी हर्डल्स कम हो जाती हैं। अगली चीज क्या है कि डिग्री काफी नहीं है, सेल्फ एजुकेशन साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है, इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग अगर हैं भी तो उनके पास टाइम नहीं है किसी को गाइड करने का, किसी को मेंटोर करने का, क्योंकि अपनी जॉब के साथ साथ चीज़ों को लेकर चलना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो सेल्फ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देखें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं, प्लूरल साइट है, यूडेमी से आप लर्न कर सकते हैं, रेनफोर्स है, let's defend.io, कहीं से भी आपको एक कतरा भी मिल रहा है सीखने को, आप अपनी सेल्फ एजुकेशन को कंटिन्यू करें। गेट सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड, स्टेप 2 से ये इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको स्टेप 2 के साथ ही रखूंगा, स्टेप 2 और 3 को एक ही कंसिडर करूंगा कि आपके पास डिग्री भी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने सिक्योरिटी के अंदर आना है तो बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन तो करें ना, ताकि अपने आप को डिफरेंशिएट करें कि यार मैं भी, मेरे पास भी सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है, मुझे भी कंसिडर करें सर सिक्योरिटी की जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए। लेकिन बेसिक्स उसके लिए क्या चाहिए, आईटी का, ऑपरेटिंग सिस्टम का और नेटवर्किंग का। क्वेश्चन में खास से अब्दुल बासित ने किया था कि किसने, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कि ये जब तक नहीं होगी, देखिए एक चीज होती है चलना और एक होता है चलना विद एन एक्सीलेंसी, तीनों आपके पास है तो दैट इज वेरी क्वाइट गुड। अगर नहीं है तो आप उसको स्किप ना करें, शॉर्टकट ना मारें कि यार मैं चले नेटवर्किंग छोड़ के, ऑपरेशन छोड़ के डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी में आ जाऊंगा, तो होगा क्या, आप साइबर सिक्योरिटी में आएंगे, उधर फिर इनकी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कि नेटवर्क सिक्योरिटी आई है, फिर आप कहेंगे ओह अब मैं क्या करूं, मैं नेटवर्क की तरफ चला जाऊं, फिर आपको नेटवर्क, तो आप ना एक सर्कल साइकिल के अंदर फंस जाएंगे। तो बेहतर है कि नेटवर्किंग की बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम की, आईटी की बेसिक्स सीख के साइबर सिक्योरिटी में जंप करें। कुछ कंपनियां ने अपने सर्टिफिकेशंस दिए कि सिक्योरिटी प्लस, क्लाउड प्लस, ये सर्टिफिकेशन कर लें, आपके पास बेसिक लेवल की अच्छा नॉलेज आ जाएगा। अब इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हम कह देते हैं कि कोई बंदा, उसका 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर ना स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। स्पेशलाइज्ड मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्लाउड को उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, नेटवर्किंग को सेपरेट कर दिया। अब एक चीज यहाँ से क्या नजर आ रही है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मार्केट में जॉब सेपरेट होंगी,
क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जॉब सेपरेट है, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब सेपरेट है। तो इसकी आप अगर इनकी स्पेशलाइज सर्टिफिकेशंस करेंगे, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एजूर की भी है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, तो फिर आप क्लाउड वाली साइड के ऊपर अपना जो करियर है वो स्विच करते जाएंगे। गेट सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड, ये एक रोड मैप मैं आपको चेक, मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर दूं। तो ये पेड कोर्सेज हैं जो आप लिंक्स दिखा रहे हैं? ये लिस्ट, इसके अंदर से ट्रेनिंग आप फ्री में ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजूर जो आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एग्जाम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेनिंग भी कर ली तो उसके बाद आपके लिए इजी होगा कि अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल जुलाई 2022 का एक 5 रोड मैप उन्होंने दिया हुआ है कि जो ऑलरेडी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं वो किस तरह से सिक्योरिटी के अंदर आ सकते हैं। लास्ट पोर्शन आप देख रहे हैं ऊपर कितनी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन लास्ट के अंदर दिस सेट कि आपने सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी में आना है, तो आप ये सर्टिफिकेशंस कर लें। SC 900, AZ 500 सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी ऑपरेशंस एनालिस्ट, SC 200, आप ये कर लें तो आप क्लाउड सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काउंट होंगे या एट एन इंटरमीडिएट लेवल। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के आप AWS के भी यही पाथ फॉलो होता है। अब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली जब आप ये सर्टिफिकेशंस कर रहे होंगे ना, तो प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल लैब्स को भी कवर करेंगे। प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर बड़ा डिटेल्ड और थॉरो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद, मसलन आप अगर एजूर की करते हैं तो इवन वो आपको फ्री अकाउंट भी माइक्रोसॉफ्ट का दे देते हैं कि टेस्टिंग करें जो जो आपने यहाँ पे दिल करता है। 200 घंटे होते हैं अराउंड उसके अंदर, जो आपने टेस्टिंग करनी है लर्निंग के लिए आप उसके ऊपर कर सकते हैं। कुछ बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं, जिस तरह रेंज फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है कि वो टीम बेस्ड थ्रेट एक्सरसाइज क्या इसके अंदर करते हैं कि आप पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, कोई दुबई से बैठ जाएगा, कोई इंडिया से आ जाएगा, तो टीम्स ना एक दूसरे के अगेंस्ट भी काम कर रही होंगी। आप कोई उसको टफ टास्क बना के दे देंगे, वो आप उस टास्क को सॉल्व कर लेगा, या कंबाइंड किसी टारगेट के ऊपर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो ये मिलके सेंट्रलाइज्ड टीम बेस्ड लर्निंग के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म जो ट्राई हैक मी है और हैक द वेब, ये प्योरली ऑफेंसिव सिक्योरिटी से रिलेटेड है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए दे आर द वेरी गुड ग्राउंड जहाँ से वो लर्निंग कर सकते हैं। फाइनली द डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटीज एंड पैशन। इतना कुछ कर लिया, लेकिन जॉब हंटिंग के लिए एक होता है जॉब हंटिंग और एक होता है बीइंग हंटेड। जॉब हंटिंग थोड़ा सा आप ऑब्सोलीट हो गया हुआ है कह सकते हैं, या बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए दैट्स साउंड्स फेयर, लेकिन बीइंग हंटेड जो है ना, ये अब मेरे ख्याल से कि विद द करंट एनालिसिस और करंट चीज ये ज्यादा फॉलो हो रही है कि लोग आपको हंट करें कि यार हमें आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आप हमें ज्वाइन करें, इंस्टेड ऑफ कि आप कहें कि मैंने आपकी कंपनी में जॉब करनी है। इनिशियल लेवल के ऊपर हम ये करते हैं कि आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं लिंक्डइन, ट्विटर, गिटहब, मीडियम आर्टिकल्स लिखें, इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं एंड देन शोकेस करें कि क्या क्या आपके पास स्किल सेट है। आप साइबर सिक्योरिटी के कुछ करियर पाथ्स, एक छोटी सी हम एक वीडियो है उसके अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। टेस्टिंग एंड हैकिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि एथिकल हैकर्स करते हैं, दे गेट पेड बाय फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटीज। अच्छा, जब वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर ली, एथिकल हैकर्स ने अटैक कर दिया, तो कुछ डिफेंसिव साइड भी तो होनी चाहिए ना। तो इंसिडेंट रिस्पांस या सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम जो है वो उसको डिफेंड भी करती है। तो हियर कम्स द इंसिडेंट रिस्पांस पार्ट। कंसल्टिंग सिक्योरिटी इंजीनियर्स ये करते हैं, कंसल्टेंट्स के दे कंसल्ट कि क्या आपको करना है टू मेक श्योर कि आप जो भी रन कर रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सिक्योर। अब एक क्वेश्चन था, इज साइबर सिक्योरिटी सूटेबल फॉर यू? मेरे ख्याल से हर किसी का ये क्वेश्चन था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, ये मैनेजमेंट बैकग्राउंड से लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए है, या लॉयर्स के लिए, किसके लिए?
इट डिपेंड्स कि आपका टारगेट क्या है, और टारगेट आपने कहाँ से सेट करना है। टारगेट आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, आप इवन टारगेट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मेरा मैनेजमेंट बैकग्राउंड है तो मैं बाकी डोमेन्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मेरा वहाँ पे स्कोप नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ जाऊंगा, लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर आ जाऊंगा। क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि ठीक है मेरा मैनेजमेंट बैकग्राउंड है तो मैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूंगा इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। किस आई थिंक एनी क्वेश्चन सो फार? किसी के कुछ क्वेश्चंस चैट में भी थे। आई थिंक अगर थोड़ा सा शाइनेस खत्म की जाए, क्वेश्चंस बोल के अगर पूछ लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। Sir, bug bounty, sir, it is also in pen testing, huh? Bug bounty. अच्छा, बग बाउंटी क्या है? आपने लर्निंग कर ली थ्रू द ट्राई हैक एंड हैक द बॉक्स। अब बग बाउंटी के लिए ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हैकर वन प्लेटफॉर्म है। अब उसके ऊपर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ना वॉलंटियर किया हो कि कोई भी दुनिया से हैकर आए, हमें वो टेस्ट करे, हमारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करे, हमें रिपोर्ट करें एंड वी विल पे देम। अच्छा, कैन आई डू OSCP इजीली? आई डोंट नो फातिमा आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड पता होता तो मैं आपको बता देता कि आप OSCP इजीली कर सकती हैं या मुश्किल से कर सकती हैं, या Can you suggest some website for the tools and for learning the course on YouTube? मैंने Can you स्लाइड के recommend अंदर any भी, channel? हाँ कुछ चैनल्स हैं। आपने हीथ एडम्स का चैनल है, TCM है, वो एक अच्छी ऑप्शन है। यूडेमी के ऊपर आप कोर्सेज बाय कर सकते हैं, इवन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। अच्छा, उनका उनका होता है क्या है कि उसके अंदर ना आप जिस तरह क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन आंसर वाला सेशन नहीं होता। इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप किसी इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग से स्टार्ट करें और पैरेलल के अंदर ना सेल्फ लर्निंग करें। जस्ट 1 to 2 इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग से आप गुजर गए ना तो उसके बाद यू आर फ्री, आप किसी भी ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं। मसलन अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप स्टक हो जाएंगे, आप उसके आगे पीछे नहीं चल सकेंगे, लाइक यू विल बी इन अ लूप। उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग आंसरिंग रिक्वायर्ड होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, और फिर आपने जहां से लर्न करना है देयर इज नो स्टॉप फॉर यू। अच्छा साकिब, मोस्ट ट्रेंडिंग सिम सॉल्यूशन जो है रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सेंटिनल इज आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, लेकिन उसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है, हर कोई उसको बेयर नहीं कर सकता। उसके अल्टरनेटिव कौन से लोग यूज कर लेते हैं सिम सॉल्यूशन? एल्क, स्प्लंक, एक्साबीम, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। स्प्लंक बड़ी अच्छी मार्केट है, क्यूरेडार की अच्छी मार्केट है, एल्क की अच्छी मार्केट है, लेकिन जो समझ लें कि नेक्स्ट जनरेशन सिम है ना, जिनको XDR भी कंसिडर कर लें, वो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ही है। अवैस का वेयर टू स्टार्ट फॉर पेन टेस्टिंग। अवैस आप इन पांचों को फॉलो करें ना, जब आप इस ट्राई हैक मी और हैक दी बॉक्स के ऊपर आएंगे ना तो आपका पेन टेस्टिंग का काफी ज्यादा पोर्शन आपको समझ लग जाएगा कि अच्छा आपने क्या करना है। वर्किंग एज अ QA इंजीनियर, वांट टू अपग्रेड माय स्किल्स एंड मूव टू साइबर सिक्योरिटी। अब्दुल्ला आपके लिए आई थिंक थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेशंस आपको कॉम्प्रियन की यहाँ पे रेफर की हैं, EC काउंसिल की, इवन ECH बड़ा अच्छा है, उसको आप अगर कर लेते हैं तो बेस आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। बेस जब बन जाएगी तो फिर आप स्पेशलिटी कर सकते हैं। कैन यू शेयर द स्लाइड्स? ऑब्वियसली इनके पास आई थिंक किरण या फहद के पास स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इज दिस वन टाइम इंट्रोडक्टरी सेशन? Anusha Khan, multiple sessions can be arranged, but totally depends upon the, I think from the management, can someone better answer this question? Sir, I have a question, please. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से आप साइबर में क्या ऑफर कर रहे हैं ट्रेनिंग? अभी जो ये है आपका ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें आप अभी क्या ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, प्रेजेंटेशन के अंदर एज सच कोई पेट हम किसी वेंडर को टारगेट नहीं कर रहे कि हम आपको कॉम्पिया के ही करवाएंगे, लेकिन एक जेनेरिक साइबर सिक्योरिटी का जो है ना गाइडलाइन, मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ EC काउंसिल, CompTIA, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, एज कोई भी चीज जो दैट विल बी अ, can you share the link of what Ashir?
Fatma, Sir, how I start the career in cybersecurity means from basic, like we can start from networking, means getting how I get in that डिफाइन हुआ ethical आप hacking. नेटवर्किंग, हाँ Yes, applications है ना, ये कोई भी ओनली कॉम्पिया तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दी तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। ईलन सिक्योरिटी कर लें आप, के बेसिक सीख लें, इवन आप यूट्यूब शुरू करें ना कि नेट बेसिक्स आपके लिए चल पड़ेगा काम है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एआई एंड वज़ा, वो फातिमा बता देता हूँ, बट व्हाट इज एआई इंटेलिजेंस है, ये तो वज़ा से कोई रिलेटेड। अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, Can you hear me? yes sir, yes sir. अच्छा, आई थिंक ये बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल की जो है ट्रेनिंग हो रही है साइबर सिक्योरिटी की। We cannot hear you. Excuse me, sir, I have a question. Connecting shortly. I think he's just disconnected. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes sir. मैं आई थिंक ये आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के है साइबर सिक्योरिटी का। सॉरी आई वाज ड्रॉप्ड ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन। साइबर सिक्योरिटी का टोटली डिपेंड्स कि हमारे पास ऑडियंस किस टाइप की आती है। अगर तो लाइक थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, बेसिक्स उनकी अच्छी है, तो इवन इंटरमीडिएट लेवल का भी करवाया जा सकता है। लेकिन नथिंग स्टॉप्स एट द बिगिनर लेवल। हमेशा बिगिनर को टच करने के बाद चीज़ रुक नहीं जाती, बिगिनर के बाद वो ऑलवेज इंटरमीडिएट लेवल को टच लाजमी करती है। मसलन अगर आपको मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं बताऊंगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या। ऑब्वियसली दैट विल लीड टू सम प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्टिंग के अंदर टूलिंग आ जाएगी जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है, एंड देन दैट विल इवेंचुअली। जी उसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए आपको नेटवर्क्स का पता हो, आपको लिनक्स का पता हो पेन टेस्टिंग के लिए, तो एक स्टेप अहेड है वो आई थिंक। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनको डिफाइन, अब जैसे कि ब्लू टीम है, रेड टीम है, अब जैसे मैनेजमेंट में सिस्प है, सीजम है, बिल्कुल। तो ये मतलब आप, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं रिगार्डिंग कि ये किस किस्म की होगी, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन का लिनक्स का नहीं पता होगा, अब लिनक्स का नहीं पता होगा तो बहुत सी कमांड्स हैं जो काली लिनक्स और सारी चीज़ें ही पैरेट ओएस पे हैं। तो अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो फिर एथिकल हैकर कैसे होंगे? आपको पोर्ट्स का नहीं पता, आपको कम्युनिकेशन चैनल्स का नहीं पता, आपको OSI का नहीं पता। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग आंसर करता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मैं भी नूब हूँ, मैंने नया नया साइबर सिक्योरिटी में आना है, और लेकिन मेरा ये कि यार मैंने ना सिक्योरिटी के अंदर जंप भी करना है और चीज़ें मैंने सीखनी भी। मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मेरी अगर कोई कमांड आ गई है, मेरा कोई टूल आ गया कि मैंने पोर्ट स्कैनिंग करनी है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर ना 3 टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं पोर्ट स्कैनिंग के अंदर। पोर्ट काम किस तरह से करती हैं, आपको आईपी एड्रेसिंग का पता चल जाएगा, वल्नरेबिलिटी का पता चल जाएगा। अब जब ये टॉपिक कवर करवा रहे होंगे तो क्या है, पोर्ट बेसिक्स, नेटवर्क बेसिक्स और सिस्टम लेवल की बेसिक्स
प्लस कमांड्स जब रन प्रैक्टिस हो रही होगी ना, तो ऑब्वियसली वो नॉलेज जो है इम्पार्ट होगा और आप उसके अंदर ही मेरे ख्याल से कवर कर सकते हैं। मैंने बड़े ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐसे करवाया कि इवन उनकी नेटवर्किंग भी नहीं थी। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, एफर्ट ज्यादा लगती है स्टूडेंट की भी और जो ट्रेनर है, स्टूडेंट को ज्यादा काम करना पड़ता है। मसलन अपार्ट फ्रॉम जस्ट द ट्रेनिंग 3 to 4 आवर सेशन, उसको पार्ट टाइम देखना पड़ता है। अच्छा आज अगर हमने पोर्ट का काम किया या आईपी का, तो उसके बैकएंड के ऊपर क्या चीजें हैं वो उसको सेल्फ स्टडी करेगा। उसको 70% 80% समझ आ जाती है। जो कुछ क्वेश्चंस उसके होंगे वो नेक्स्ट डे लेके आ जाएगा, यार ठीक है मेरे क्वेश्चंस है, ये कंफ्यूजन है, ये क्यूरीज हैं, तो उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो ये जो सर्कल चलेगा ना, इसके अंदर भी एक लर्निंग मेथोडोलॉजी ये भी डिफाइन होती है। मैंने दोनों तरीकों से लर्न किया है। मेरी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैंने सिक्योरिटी से स्टार्ट किया, लेकिन जब नेटवर्किंग का पार्ट आया, मुझे जब फील हुआ ना कि अब मुझे नेटवर्किंग की वीलैंस का नहीं पता, तो मैंने वीलैंस के ऊपर लेक्चर्स देखना शुरू किए। एंड जस्ट विद इन 1 or 2 days मेरे लिए वीलैंस कोई चीज भी नहीं थी कि अच्छा सिक्योरिटी के अंदर वीलैंस का क्या काम है। दैट्स एन अदर अप्रोच जिसको फॉलो किया जा सकता है। एक आइडियल अप्रोच और एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एनीथिंग कैन बी फॉलोड। आप तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। आपने क्या किया हुआ है सिक्योरिटी में, कौन सी सर्टिफिकेशंस की हैं? ओके, मैं मेरे पास से उधर चला गया। तो सिक्योरिटी के अंदर लेट मी शेयर, दिस इज माय बैकग्राउंड। मैंने क्या किया, मेरी बेसिक्स ग्रेजुएशन इज नॉट इन द कंप्यूटर साइंसेस फील्ड। मैं बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। ड्यू टू द रीजन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप पे थी, कोई रीजन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था पता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट तो मेरा साइबर कंप्यूटर साइंसेस की तरफ है। देन आई स्विच टू साइबर सिक्योरिटी। उसके अंदर सर्वाइवल और एक्सेल करने के लिए मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेशंस किया। वो सर्टिफिकेशंस कौन सी हैं? मैंने सीएच का इसी काउंसिल का सीएच किया, मैंने इसी काउंसिल का सॉक एनालिस्ट किया है, नेटवर्क डिफेंडर का किया है। और फिर मैंने रियलाइज के चीजें क्लाउड पे जाना शुरू हो गई, देयर इज अ नीड ऑफ क्लाउड। फिर मैंने क्लाउड सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट आई एम सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट की हैं, योर फंडामेंटल, योर सिक्योरिटी इंजीनियर है, योर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। एंड देन एक्सपीरियंस मेरा मल्टीपल डोमेन्स के अंदर है। जिस डोमेन के अंदर मैंने काम किया मैंने उसकी सर्टिफिकेशन कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई ऐसी डोमेन रह गई हो जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा भी काम ना किया हो। तो ये सारी सिक्योरिटी की डोमेन्स हैं। अच्छा, एक नई आई है सर्टिफिकेशन, वैसे तो क्लाउड की आईसी स्क्वायर की बड़ी मशहूर है, CCSP। इन्होंने इसी काउंसिल की एक CCSE आई हुई है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर है, CSE। हाँ हाँ CSE। तो अच्छा सेट जी सॉरी जी मैंने सॉरी गो अहेड। तो उसके लिए आपको मतलब क्लाउड का होना चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्टली उसके अंदर ये है कि बेसिक्स उसके अंदर उन्होंने ना बेसिक से शुरू किया हुआ है। बेसिक्स क्या से, अगर वो AWS का बता रहे हैं ना, तो AWS के ऊपर आपको बताएंगे बाकायदा EC2 इंस्टेंस क्या है, EC2 इंस्टेंस की बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या है, यहाँ से बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि S3 बकेट है, तो S3 बकेट के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने उसको पब्लिक नहीं करना, इंक्रिप्शन एट रेस्ट होनी चाहिए, वर्जनिंग होनी चाहिए। वो सब कुछ वही ले रहे हैं जो उनकी बेस्ट सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस है, और उन्होंने कंबाइन करके बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि दे आर वेंडरलेस। AWS के ऊपर आप जाएंगे, दे आर वेंडर लॉक सर्टिफिकेशन। एज्योर के ऊपर जाएंगे, दे आर वेंडर लॉक। एज्योर वालों को AWS वाले नहीं लेंगे। CSE वाली जेनेरिक है, अगर आपने कर ली तो आपको हर क्लाउड का पता चल जाएगा। ये एक इसका एडवांटेज है। ऑल्दो मार्केट के अंदर स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस की अपनी वर्थ है। For the beginners or to have a generic overall, I think CS is also good. आप बात कर रहे थे ISA square CISP सर्टिफिकेट, CISP की, ISA square की जो क्लाउड की है लेकिन उसके अंदर भी गोल्ड स्टैंडर्ड आ जाता है ना। जो ISA square की सर्टिफिकेशन है, दे आर कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद इसाका की आ जाती हैं, जिनको आप प्लेटिनम कह लें या सिल्वर कह लें, और उसके नीचे वो सर्टिफिकेशन है जो हम अब कर रहे हैं। इवेंचुअली गोल तो सबका यही है कि उन्होंने जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, सिस्प है, उनकी जो क्लाउड से है वो करनी है। लेकिन इनिशियली तो ये स्टार्ट करें ना, डायरेक्टली सिस्प के ऊपर जाके किसने सर्वाइव करना है। हमारा गोल अभी है कि एंट्री एंड करियर्स इनटू द साइबर सिक्योरिटी। जब आप आ जाते हैं तो फिर तो जिस आप बता रहे हैं आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, तो आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर द ISS केयर। लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पे ऑडियंस है वो तो इनिशियल लेवल के लिए सूट करती है।
सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं डाइस का मेंबर हूँ तो इसलिए वो मुझे आ गया, तो मैं देख रहा था। मैंने एक्चुअली किया हुआ है CHFI, और मैं डाटा में मेरा काफ़ी अर्सा था, देन आई स्विच टू साइबर सिक्योरिटी, और अभी मैंने CH कर लिया है। अभी मैं प्रैक्टिकल का पेपर दे रहा हूँ, तो कोई अगर आपके पास उसके लिए कोई एडवाइस है तो बता दे। नहीं नहीं, श्योर श्योर। डाटा के लिए आपने देखा होगा कि डाटा सिक्योरिटी की अपनी डोमेन्स है। इवन डाटा सिक्योरिटी अकेली नहीं होती, डाटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी की अब कॉम्बिनेशन चल रहा है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी के अंदर एग्जैक्टली सर्टिफिकेशन तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन इसके लिए आई थिंक अगर सिज्म के अंदर भी एक इसकी डोमेन कवर होती है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट आ जाती है, एंड डाटा सिक्योरिटी ऑन रेस्ट एट ऑन फ्लो इन ट्रांजिट, और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्रिप्टोग्राफी, 3-4 डोमेन्स मिला के आई थिंक डाटा सिक्योरिटी का काम काफी ज्यादा चल सकता है। प्लस प्रिवेसी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर गवर्नेंस का जो ज्यादा रोल प्ले होगा। गवर्नेंस इन द सेंस अच्छा, जी मैं आपको एक सॉरी टू कट यू। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने जब साइबर किया मुझे पहले 5-6 मंथ्स लगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ऐसी कोई चीज जो होती है, आपको कोई, आप जिसके पास जाएंगे उसकी एक अपनी ही जो है वो होगी कि यार आप जो है आप ये कर लें, आप यूं कर लें, स्टार्ट कर लें। लेकिन आई थिंक अगर आप सिर्फ सही तरह कर लें तो आपको साइबर सिक्योरिटी की पूरी, आप अब भी ना करें क्योंकि डेफिनेटली वो मांगती है आपसे कि आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस हो, और फिर आपको डेफिनेटली उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कर लिया है तो आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं। बट लेकिन वो आपको एक जेनेरिक जो है ना साइबर सिक्योरिटी की, वो आपको ओवरव्यू दे देता है। मैं ट्रेनिंग आप बंदा ले लेगा, मैंने लिया, उसके बाद मेरी काफी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। देखिए, सिस्प की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सिस्प इज अ वेरी गुड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, लेकिन बिगिनर लेवल के ऊपर पहले अब 4-5 साल तो समझ लें कि सिस्प किसी को भी मैं रेकमेंड नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि सिस्प जो है ना मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल साइड है। इनिशियल लेवल के ऊपर आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिन्होंने 4-5 साल जिसका है ना, सिस्प उनके लिए ईजी है एज कम्पेयर टू अगर कोई शुरू से ही थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर सर्वाइव करता है। प्लस सिस्प की अपनी रिक्वायरमेंट भी, आपने 3 डोमेन्स, मिनिमम 3 डोमेन्स के ऊपर अंदर काम किया हो, हर डोमेन के अंदर आपका कोई स्पेसिफिक 1.5 साल हो या 1 साल हो, और ओवरऑल आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो रिक्वायरमेंट जो है आई थिंक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को मीट करती हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर आई थिंक प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ज्यादा होना चाहिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर वो ये है कि मैंने सर नेटवर्किंग में ना, ये हायर एजुकेशन कमीशन में एक जॉब की हुई है, मतलब एज अ डाटाकॉम इंजीनियर। मुझे मतलब नेटवर्किंग की बेसिक्स तो थोड़ी बहुत पता है, लेकिन ये कि सर्टिफिकेशन तो नहीं की हुई। और दूसरा ये कि मैंने जॉब छोड़ के ना, तो आजकल मैं कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे, मतलब वेबसाइट्स वगैरह मतलब 1-2 बनाई हैं, और ऑनलाइन स्टोर और कस्टम, मतलब CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का सीखा है। तो सर मेरे लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की कौन सी फील्ड में जाना मतलब सूटेबल होगा? देखिए, अगर आप पहले नेटवर्क वाली साइड पे थे तो नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स की काफ़ी ज़्यादा जॉब है। आज वैसे मैं एक जॉब सर्वे कर रहा था, तो नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स की सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर जॉब 2-3 जॉब ओपनिंग्स हैं। नेटसोल के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की है। इवन कतर, दुबई, बहरीन के अंदर बेतहाशा वो नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स ढूंढ रहे हैं। अगर तो आप अपनी पिछली फील्ड को रिवाइव करके नेटवर्क सिक्योरिटी की 2-3 सर्टिफिकेशंस कर लें, मसलन सिस्को कर लें। सिस्को के अंदर आप क्योंकि सिक्योरिटी का उन्होंने पार्ट भी डाल दिया हुआ है, और डिफेंडर, CCN है सर? हाँ CCN है, उसके अंदर सिक्योरिटी का पोर्शन भी अराउंड 33% वो भी ऐड कर दिया उन्होंने। आप वो कर लें अच्छा सा, CCNP सिक्योरिटी कर लें, तो आई थिंक यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस जहाँ पर आप करेंटली सिक्योरिटी विदाउट एनी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है। Sir, how get in the ethical hacking means how I started a career in this. So, first step. सनोला, जस्ट अ शॉर्ट आंसर। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लर्निंग स्टार्ट करें, कहीं से भी लर्निंग स्टार्ट कर दें। डिफरेंट जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, आपको एक दो सर्टिफिकेशन पकड़ लें। आप CH पकड़ लें, मैं इसलिए कहता हूँ CH के ऑलमोस्ट सब कुछ बताया हुआ, प्लस आप CompTIA की एक सर्टिफिकेशन पकड़ लें। इन दोनों को आप स्टार्ट कर दें,
और ऑनलाइन इनसे रिलेटेड जितनी आपको चीज़ें लगती हैं, यूट्यूब से चैनल देख लें, यूडेमी के ऊपर आपको अगर कोर्स बाय करना चाह रहे हैं वहाँ से कर लें, कोई इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं आप इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जस्ट स्टार्ट, छोड़ दें कि क्या बाद में होगा क्या नहीं। ये 2-3 सर्टिफिकेशन आपको बताएंगे, दे आर क्वाइट गुड। आपकी जब बेस बन जाएगी ना, इन 2 सर्टिफिकेशंस के बाद आपकी बेस इतनी अच्छी बन जाएगी कि आपको आइडिया होगा कि आपने नेक्स्ट जंप किधर लगानी है। Okay, sir. Thank you so much. प्लीज ये सर्टिफिकेशंस मैसेज में लिख दें कौन सी, आप वो समझ नहीं आ। ये 2 स्टार्ट किया जा सकता है, CH सिक्योरिटी प्लस। ये सब फ्री है या पेड है? अच्छा, इनकी आपको मटेरियल तो शायद मिल ही जाए ऑनलाइन, लेकिन जो एग्जाम है ना वो आपको पेड है। सर ठीक है, लेकिन एक कोर्स है कंप्यूटर साइंटिस्ट है, यूडेमी जायद सेब से नाम है, और वन ऑफ द टॉप रेटेड भी है यूडेमी पर, जायद सेम कंप्यूटर साइंटिस्ट एथिकल हैकर। यार मैंने कोर्स यूडेमी के ऊपर ना सिर्फ फॉरेनर्स के अच्छे मिले हैं मुझे। अगर मैं AWS की बात करूं तो स्टीफन का कोर्स वाज आउट क्लास, लेकिन बात अगेन वहीं पर है कि जहां से आपका दिल करता है प्लान करें, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप एक आध इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग से स्टार्ट करें, उसके बाद आप जहां से मर्जी चले जाएं। सर आप प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब बेसिक ट्रेनिंग्स जैसे डाइस भी है प्रोवाइड करते हैं नहीं सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में? I think management might comment on this. Yes, sir. Further, An introductory course in cyber security and also guide us the fees. Yes, the cybersecurity course is starting from 24th. I'll be sharing the registration link shortly in the comment section. अस्सलाम जी, वालेकुम, okay. कैसे हो? वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, बेहतरीन। क्वेश्चन है हेलो कोई जानजेब, आपका? जी जी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब्दुल्ला आपने क्वेश्चन करना था। आई थिंक देयर इज सम लैग ऑन अब्दुल्ला सर। जी मैं ये चाह रहा था जानजेब के लेटेस्ट से अगर कोई डाटा इंजीनियर है ना, तो उसको साइबर सिक्योरिटी साइड पे मतलब अगर उसको एक डाटा इंजीनियर के लिए क्या चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं सिक्योरिटी साइड पे, या उसको इस तरफ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मैंने डाटा इंजीनियर्स और डाटा साइंटिस्ट के साथ काम किया, उनकी फील्ड जो है ना दैट इज टोटली रिलेटेड टू डेटा, और साइबर सिक्योरिटी में उनके लिए ये समझ लें कि वो अपना करियर खराब करके आना चाह रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि वो ना आए, लेकिन ये है कि डाटा साइंटिस्ट इज अ वेरी गुड फील्ड। अगर कोई रीजन है तो उसके बारे में डिस्कशन की जा सकती है कि आपने किस टाइप का डाटा के ऊपर काम किया है, क्योंकि इसके अंदर भी आगे फील्ड्स निकल आती हैं कि डाटा सिक्योरिटी इटसेल्फ एक सब डोमेन है कि डाटा को किस तरह से सिक्योर करना है और कौन क्या किन किन फ्रेमवर्क्स के ऊपर हमने उसको मैप करना है। अगर आपने जेन्युइन स्विच करना है तो जस्ट इन कॉन्टैक्ट उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डोमेन इसकी एग्जिस्ट करती है। ओके, यानी नहीं स्विच तो नहीं करना मैंने, लेकिन मैं वैसे कि वैसे इंजीनियर के लिए क्या मतलब कोई है इसमें जगह, कोई इसके किसी दिल के कोने में कोई जगह या नहीं है? हाँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट की मैं डाटा से रिलेटेड आपको बताता हूँ। दे हैव द डाटा सिनेप्स एनालिटिक्स डाटा लेक, जिसके ऊपर सारा डाटा रिजाइड करता है, बिग डाटा लेक और सिनेप्स SQL पूल्स जो हैं, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम। इन्फॉर्मेटिका के बिग डाटा लेक्स हैं। इनकी ना बेस्ट सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस अवेलेबल है। आपने देखा होगा सिक्योरिटी इंजीनियर्स क्या करते हैं, डाटा उठा के ETL जॉब चला के बस उसको डंप कर देते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रॉपर मैपिंग हो, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के मैकेनिज्म डिफाइन हो, RBAC कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड हो, डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर पड़ा हो विद इन द SQL पूल्स। तो ये बेस्ट सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। एजर के ऊपर होंगे आपको एजर के ऊपर मिल जाएगा, इन्फॉर्मेटिका के ऊपर होंगे इन्फॉर्मेटिका से मिल जाएगा।
एश्योर कौन सा करना पड़ेगा डाटा इंजीनियर के लिए, डाटा सिक्योरिटी कौन सी सर्टिफिकेशन ठीक रहेगी? सर्टिफिकेशन कौन सी रहेगी? आई थिंक देयर इज डाटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की, जेनेरिक कोई भी नहीं है, ये हमेशा प्लेटफॉर्म वेंडर लॉग सर्टिफिकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट का मुझे इसका आइडिया है क्योंकि मैंने खुद देखी है। डीपी के नाम से DP 300 या DP 200 आई थिंक, दैट इज फॉर द डाटा एनालिस्ट सिक्योरिटी, कुछ इस तरह से करके उसका नाम है। और जो सिक्योरिटी के भी सर्टिफिकेशन का पूछ रहे हैं, देयर इज अ कोर्स जेनेरिक कोर्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी, आई थिंक 24 सितंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल इन दैट, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो जानसब भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी। अच्छा, बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, मैंने आपने मेरा मैसेज भी पढ़ा था। एज अ QA टेस्टर, तो 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी वाइड फील्ड है, काफ़ी बड़ा ट्री है। तो जो QA टेस्टर है वो टेस्टिंग की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहाँ पर वो आकर पॉइंट आउट होता है, या कौन सी चीज़ है जो साइबर सिक्योरिटी में जो उसको उसी की फील्ड से रिलेटेड रहेगी। आगे जाके पेनिट्रेशन टेस्टिंग की समझ आती है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आगे जाके तो मतलब स्टार्ट कहाँ से किया जाए एज अ टेस्टर जो साइबर सिक्योरिटी में इन होना चाह रहा है? नियरेस्ट ढूंढने, नियरेस्ट जाके आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की सूट करती है। ठीक है, तो सही है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही ऑप्शन ठीक है। तो उसका स्टार्ट कहाँ से, यही होगा? इससे कोई इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है? देखिए साइबर सिक्योरिटी जो जनरल है ना, जिसका अभी हम 24 से स्टार्ट भी करने लगे सेशन, दैट इज ये समझ लें कि वो प्री रिक्विजिट है, ये बेसलाइन बेसिक क्रिएट करेगा सबके लिए जिन्होंने एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर जाना है या जिन्होंने नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जाना है। बेसिक्स आप कवर कर लें, क्योंकि आगे जाके आपको ना प्योर एप्लीकेशन में चले कि अगर आपको उसके अंदर कहीं पे नेटवर्क की जरूरत पड़ गई या किसी और डाटा सिक्योरिटी की, तो वो आप लैग करेंगे। बेहतर है कि आप बेसिक सीख के फिर एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाएं। जी ठीक है, थैंक यू। बाकी ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही सूट करेगी, यही कंफर्म करना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, जो डाइस कोर्स करवा रहा है साइबर सिक्योरिटी का, ये बिगिनर लेवल है या फिर ये बिगिनर प्लस इंटरमीडिएट है? देखिए ये स्टार्ट होगा बिगिनर लेवल से और एंड होगा इंटरमीडिएट लेवल पे। ओके। कितने मंथ का कोर्स है और ये क्या प्राइसिंग वगैरह कुछ शेयर? प्राइसिंग तो शेयर कर, मेरे ख्याल से उन्होंने शेयर कर दिया है डाइस के मैनेजमेंट ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द 24 सितंबर, और बाकी डिटेल्स भी उधर ही हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? जहाँसेब आप काइंडली थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन गो थ्रू करके एक्सप्लेन कर देंगे कि 2 मंथ्स की ट्रेनिंग में आप कैसे कोर्स कंडक्ट करेंगे? अच्छा हाँ, मैं कोर्स आउटलाइन ओपन कर लेता हूँ। ये एक ड्राफ्ट बना हुआ है जो हमने कोर्स आउटलाइन कवर करनी है, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, 2 मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे रिलेटेड टू द फुटप्रिंट एंड रिकॉनेसेंस। ऑल्सो वी विल कवर द नेटवर्क पार्ट एज वेल, जहाँ पे बेसिक्स कवर होंगे नेटवर्क की, प्लस स्कैनिंग के बाद इन्यूमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस विल बी ऑन द नेटवर्क साइड एज वेल ऑन द सिस्टम साइड। जब सिस्टम लेवल के ऊपर या नेटवर्क लेवल के ऊपर आएंगे तो हम सिस्टम हैक करके देखेंगे। उसकी हैक करने से मुराद ये नहीं कि हम इवल अप्रोच से जाएंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर फ्रॉम द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आफ्टर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज में आइडेंटिफाई हुई हैं और उनको पैच किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल लिनक्स की कोई मेरी उबुंटू मशीन है, उसके ऊपर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी है, तो बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल व्हाट आर माय रिस्पांसिबिलिटीज? माय रिस्पांसिबिलिटी इज नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई इट, रादर टू पैच इट एज वेल। देन मोबाइल हैकिंग को हम टच करेंगे, मोबाइल मेलवेयर्स, बिकॉज मोबाइल्स आर आल्सो लार्जर क्रिएट्स अ लार्जर सरफेस एरिया, इनकी हैकिंग, इनकी सिक्योरिटी देखेंगे। मेलवेयर थ्रेट्स के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आएंगे,
mobile, laptop, servers. And then finally, ये जो तीन modules हैं, hacking web servers, these are related to the application security. एप्लीकेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, आर्किटेक्चर डिफाइन करने के बाद उसके अंदर एक वेस्प की जो वल्नरेबिलिटी या सीक्वल इंजेक्शन, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सोशल इंजीनियरिंग दैट इज टोटली फ्रॉम द गवर्नेंस साइड, लेकिन इसको भी देख रहे हैं. आईओटी हैकिंग मोस्ट प्रोबेबली हम स्किप कर दें. एंड फाइनली द क्रिप्टोग्राफी के अंदर डाटा सिक्योरिटी आएगी. डाटा सिक्योरिटी प्लस बीइंग एन हैकर, किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हुए मेलवेयर्स अपने आप को अनआइडेंटिफाई करते हैं एंड देन दे ट्रैवर्स. क्लाउड कंप्यूटिंग का पोर्शन कुछ कवर करेंगे. स्निफिंग एंड सेशन हाईजैकिंग कम्स ऑन द नेटवर्क पार्ट कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन प्रेमिसेस के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. एंड फाइनली द डीडोस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, एंड द आईडीएस एंड आईपीएस. So this was a high level overview कि क्या इसके अंदर हम कवर करेंगे. Thank you. Kiran, if we don't have any more questions, we can wrap it up earlier, right? Thank you so much, everyone, for joining us today. I think we are done for the day. We have mentioned an email in the chat section. You guys can email us for the recording or any queries regarding our training at info@diceanalytics.pk. Thank you so much, Mr. Jahanzeb, for your time and for conducting such an informative session. That's all for today. Hafiz, everyone. No, yes.